السلام علیکم کلاس 2 اسلامیات کے چوتھے لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں اور آپ اپنی کتاب دیکھ رہے ہیں. آپ کی کتاب سلام آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے اور اس کا صفحہ نمبر 4, 5 اور 6 نکالیے. صحیح ہے. صفحہ نمبر 4 پر جو سبق شروع ہو رہا ہے اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے. کیا نام ہے آپ کے سبق کا؟ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا اور سنتا ہے. بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، میں اور آپ اور ہمارے سارے جو ہے گھر والے اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں. آسمان دیکھتے ہیں تو آسمان کا رنگ نیلا ہے. درختوں کو دیکھتے ہیں اس کا رنگ ہرا ہے. پھولوں کو دیکھتے ہیں تو مختلف رنگ کے ہیں. کوئی لال رنگ کا ہے، کوئی جو ہے پرپل کلر کا ہے، کوئی جامنی کلر کا ہے. اور ہمیں پتے دکھتے ہیں تو وہ ہرے رنگ کے نظر آتے ہیں. پہاڑ دکھتے ہیں تو وہ براؤن کلر کے نظر آتے ہیں. اس طرح ہمیں مختلف رنگ نظر آتے ہیں. ہر چیز میں مختلف رنگ ہے. اور اس کے علاوہ یہ تمام جو چیزیں ہیں، پھل دیکھتے ہیں تو پھل کوئی جو ہے پیلے رنگ کا ہے، کوئی ہرے رنگ کا ہے، کوئی لال رنگ کا ہے. انار کو دیکھیں تو لال رنگ کا ہے. سبزیوں کے مختلف رنگ ہے، کوئی سفید رنگ کی ہے، کوئی لال رنگ کی ہے، کوئی صحیح ہے. تو ہر جگہ ہمیں رنگ ہی نظر آتے ہیں. یہ تمام رنگ، یہ تمام دنیا کی چیزیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. صحیح بیٹا. اور اس نے ان بے شمار نعمتوں کے ساتھ اس نے ہمیں بہت ہی پیارے رشتے دیے. ہمارے والدین دیے، ہمارے بہن بھائی دیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام رشتے، یہ سب ہمارے لیے نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ کاموں میں اور بہت سے کاموں میں مصروف رہنے کے لیے بھیجا ہے. اور ہمیں کچھ کام بھی دیے ہیں کہ جیسے ہم علم حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ اپنا حکم ماننے کے لیے، اپنی بات کرنے کے لیے اور دوسرا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے انسانوں کو. انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہی پیدا کیا ہے. وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی جو ہے قنوت پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اس طرح سارے فرشتے جو ہیں وہ مختلف کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ خاص فرشتے ہیں جو مختلف کاموں کو اللہ تعالیٰ کے انجام دیتے ہیں. صحیح ہے. اس کا حکم مانتے ہیں فرشتے، اللہ کی بات کرتے ہیں. اور لیکن انسانوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، یعنی کہ جائز طریقے سے کما کر اس پیسے سے اپنے گھر والوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے. اور ماں باپ رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرنی ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے. اور اس طرح کے بے شمار کام. انسان کو فرشتوں سے کہیں زیادہ کام کرنے ہیں اور برے کام سے بچنا بھی ہے. صحیح ہے. انسانوں پہ ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا تو اس پہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے اور اچھے کاموں کی طرف اپنے آپ کو جو ہے اچھے کام کرنے ہیں، تاکہ جو ہے وہ برائی سے دور رہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتے اور شیطان. فرشتے تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں، اور شیطان جو ہیں وہ کیا ہے، جنوں میں سے ہوتے ہیں شیطان. اور شیطان جن کس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ آگ سے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا، اور انسان کو، مجھے اور آپ کو مٹی سے بنایا ہے. بالکل اسی طرح جن جو ہیں ان کو آگ سے بنایا ہے. ان میں جو برے جن ہیں وہ دراصل شیطان ہوتے ہیں. لیکن یہ برے جن ہوتے ہیں، شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے کاموں کے لیے بہکاتا ہے کہ یہ کام کر لو، جھوٹ بول لو، نماز نہیں پڑھو، روزہ نہیں رکھو، برے کاموں کی طرف جو ہے وہ لگاتا ہے. صحیح ہے.
किसी भी शख्स के जहन में ऐसी बातें डालता है जिस पर अमल करके उसको डांट पड़े। जैसे किसी बच्चे को क्लास में पढ़ाया जा रहा है लेकिन वो खेल कूद में लगा हुआ है, किसी को मारने में लगा हुआ है, किसी की पेंसिल उठाने में लगा है, तो उसको कौन बहका रहा होता है? शैतान बहका रहा होता है। उसको अच्छी बात सुनने से रोक रहा होता है और कहता है कि शरारत करते हैं, ये करते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, किसी की नकल उतारते हैं। ये तमाम बातें जो हैं शैतान के बहकावे की होती हैं। और वो ऐसा बच्चा जो शैतान के कहने में आता है वो झूठ बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गंदे गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, गाली बकता है। तो ऐसा शख्स, ऐसे बच्चे का जहन जो होता है वो शैतान के उसमें आ जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। और शैतान जैसे कहता रहता है, बच्चा वो काम करके खुश होता रहता है। और वो शैतान जो है हर वक्त इसमें रहता है कि मैं अच्छे कामों से इस बच्चे को रोक दूं, और ताकि वो अल्लाह ताला का अच्छा बच्चा, अच्छा इंसान ना बन जाए, बल्कि वो जो है शैतान के कहने में आकर बुरे काम करता है और अल्लाह ताला की नज़र में वो बुरा बच्चा बन जाए। तो शैतान की मक्कारी को जो बच्चे समझ जाते हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, वो बड़ों का कहना सुनते हैं, मिस की बात मानते हैं और सबके साथ अच्छी तरीके से रहते हैं। अगर जो बच्चे जो शैतान के बहकावे में आए थे उनको चाहिए कि वो ये दुआ जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ें। इसको पढ़ने से क्या होता है, शैतान आपसे जो है कई गज जो है दूर भाग जाता है और फिर वो आपको नहीं बहकाता। शैतान हमारे दिल में हमेशा बुरे ख्याल डालता है, और जब हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ते हैं तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है। बच्चों, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा होता है और उसको हर बात की खबर होती है। हमारे दिल में इतना सा भी ख्याल आता है ना, कोई बात हम सोचते भी हैं करने से पहले, तो उसको भी अल्लाह ताला जानता है। पहाड़, समंदर की गहराइयों में मौजूद हर ज़र्रे का हाल अल्लाह ताला को मालूम है। यानी कि अगर चूंटी कोई जो है पत्थर के अंदर जो है मौजूद है तो अल्लाह ताला उसकी भी बात सुनता है, उसके भी दिल में आने वाले ख्याल को जानता है और हर बात से बाखबर है, क्योंकि वो हर वक्त हमें देखता है और सुनता है। अल्लाह ताला को मालूम होता है कि आपने क्या सोचा है और क्या कहने वाले हैं। अल्लाह ताला हर बात का इल्म रखता है और इसीलिए हमें हमेशा अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको बेटा एक किस्सा सुनाती हूँ। इसमें ये किस्सा किसका है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस किस्से का तस्करा है मौजूद है, और इसके नाम से जो है वो एक सूरत भी है, सूरह लुक़मान। सूरह लुक़मान के नाम से ये सूरत मौजूद है। इस सूरत में क्या वाक़या, क्योंकि कुरान जो है बहुत सारे नबियों के वाक़यात से भरा हुआ है। इसमें हज़रत आदम का भी वाक़या है, इसमें हज़रत नूह का भी वाक़या है, इसमें हज़रत ईसा का भी वाक़या है, इसमें हज़रत मूसा के भी वाक़यात हैं, इसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात भी हैं। इस तरह कुरान में जो है अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया के किस्से जो हैं बयान किए हैं, ताकि जो है हमारे प्यारे नबी उससे आगाह रहें कि पहले ज़मानों में क्या क्या होता रहा। अब मैं आपको एक सूरह लुक़मान में जो किस्सा बयान किया गया है, एक शख्स थे बहुत ही बहुत दाना कहते हैं अक्लमंद को। एक दाना शख्स थे, एक अक्लमंद शख्स थे, हकीम लुक़मान। हकीम किसे कहते हैं? जो इलाज करते हैं दवा जड़ी बूटियों से, वो हकीम होते हैं। तो उन्होंने वो जो थे रहा करते थे, कहा जाता है कि हकीम लुक़मान का ताल्लुक़ जो था मुल्क अफ़्रीका से था। अफ़्रीका कौन सा इलाका होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काले रंग के लोग रहते हैं, और जो हैं वो काले रंग के लोग जो होते हैं वो हबशी होते हैं। तो हज़रत लुक़मान जो थे वो हकीम लुक़मान, उनका वो अफ़्रीका से ताल्लुक़ था उनका, और वो हबशी थे। उन्होंने जो है अल्लाह ताला के एक नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना देखा था। हकीम लुक़मान की बातें हिकमत और दानाई के बग़ैर नहीं हुआ करती थी। यानी कि वो जो बात भी कहते थे वो हिकमत होती थी, उसमें कोई ना कोई राज छुपा होता था, और दानाई के बग़ैर नहीं होती थी, उसमें कोई ना कोई सबक होता था। हिकमत और दानाई के बग़ैर नहीं हुआ करती थी। वो बहुत मुशाहिदा करके कोई बात कहते थे। वो जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों वगैरह को गौर से देखते और उनकी दानाई की बातों पर मुशाहिदा करके बातें कहा करते थे।
बदकिस्मती से कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपको पकड़ लिया, हकीम लुकमान को पकड़ लिया और उनको क्या कर दिया, उनको ग़ुलाम बना लिया। ग़ुलाम कौन होता है? ग़ुलाम वो नौकर होता है जो पैसे देकर ख़रीदा जाता है, फिर उससे सारा दिन काम करवाया जाता है, उसको कोई जो है तनख्वाह नहीं दी जाती, बस खाना पीना और कपड़े दिया जाता है। तो उनको जो है ग़ुलाम बना लिया और उनको फ़रोख्त कर दिया। ग़ुलामी को अल्लाह ताला का इम्तिहान समझकर हकीम लुकमान ने सब्र कर लिया। उन्होंने कहा कि चलो यही मेरी किस्मत में लिखा था कि मैं ग़ुलाम बनाया जाऊं, तो उन्होंने इसको अल्लाह ताला का इम्तिहान समझ लिया और अल्लाह ताला पर अपना भरोसा, अपना यकीन कम नहीं होने दिया। कुरान मजीद में सूरह लुकमान जो है वो इन्हीं के नाम पर है। हकीम लुकमान का तज़किरा इसमें, ये वाक़या उसमें मौजूद है। एक रोज़ उन्होंने अपने बेटे को दानाई की बातें बताते हुए कहा, यानी कि अक़ल की बातें बताते हुए कहा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना, यानी कि अल्लाह ताला जैसा कोई दूसरा नहीं है। कोई दूसरा नहीं है जो ये दुनिया बना सकता, जो दुनिया को जो है रोज़ाना के काम उसके तवातुर से चला सकता है, ऐसा कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला एक है, वाहिद है, तन्हा है, अकेला है। वही इस दुनिया को बनाकर उसको चलाने वाला है, जो सारे काम रोज़ाना होते रहते हैं। सूरज निकलना, सूरज का ग़ुरूब होना, चाँद का निकलना, सुबह हवा का चलना, समंदर का पानी का बहना, दरिया का मीठा पानी और फूलों का खिलना, दरख्तों का बीज से पौधा बनना, फिर दरख्त बनना, ये तमाम काम जो मुस्तकिल तवातुर से हो रहे हैं, ये सब करने वाला अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला का हमें ये तमाम काम को देखते हुए हमें जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला को जो है शुक्र करके सजदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने इतनी सारी नेमतें, इतना कुछ हमारे लिए बनाया और हम जो हैं तेरा शुक्र तक अदा नहीं करते। तो हमें खुदा का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और सजदा करके उसको बताना चाहिए कि हम तेरे बंदे हैं, तूने हमें पैदा किया। आप देखें सब इंसान पहले पैदा होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल उनकी अम्मी अब्बू करते हैं, उनको जो है बड़ा करते हैं, फिर उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, फिर उनको हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनके कपड़ों का, उनके जूतों का, उनके खाने पीने का। तो तमाम चीज़ें जो हैं जितनी भी नेमतें, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते दिए, दादा दादी दिए, नाना नानी, खाला फुप्पी, चाचा, मामू, ये तमाम रिश्ते वो रिश्ते हैं जो हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। और ये सब चीज़ें हमारे लिए नेमत हैं। नेमत यानी इनाम है अल्लाह ताला का, हमारे लिए इनाम है। अल्लाह ताला ने ये हमें इनाम में दिया है, तो हमें उसका शुक्र अदा करने के लिए उसके सामने सजदा रेज़ होना चाहिए, सजदे में सर रखना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला तूने हमें क्या क्या दिया है, हम तो इसका शुक्र तक अदा नहीं कर सकते, हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बेटा अगर कोई अमल चाहे राई के दाने से भी छोटा हो और आसमानों में या ज़मीन की तह में, यानी ज़मीन के नीचे, तह कहते हैं ज़मीन की तहों के नीचे छुपा कर किया गया हो, वो अल्लाह ताला को मालूम होता है। हकीम लुकमान अपने बेटे को क्या समझा रहे हैं कि कोई भी काम तुम्हारा चाहे वो राई के दाने के बराबर, एक नुक्ते के बराबर भी हो, अल्लाह ताला उससे वाकिफ़ होता है, उसको देखता है। और तुम्हारे दिल में ज़रा सा भी ख्याल भी दिल में किसी अच्छी बात का या बुरी बात का आता है तो अल्लाह ताला को इसका इल्म होता है, तो अल्लाह ताला सब जानता है। हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा नमाज की पाबंदी करना, कभी भी नमाज मत छोड़ना, नमाज को उसके वक्त पे अदा करना, लोगों को अच्छे काम करने का मशवरा देते रहना, बुरी बातों से मना करना और जब कोई मुसीबत या परेशानी आ जाए तो सब्र करना यानी कि उसको बर्दाश्त करना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इसमें कोई ना कोई अच्छा मेरे लिए होगा, ये सोच लेना आपको इत्मीनान दिला देगा और आप सब्र करने लग जाएंगे। लोगों से बेरुखी ना करना, लोगों के साथ जो है वो गलत तरीक़े से बात ना करना, लोगों के साथ बदतमीज़ी ना करना, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलना, ज़मीन पर आराम से नरम अंदाज में पैर उठा के चलना। और क्योंकि ज़मीन जो है हमें मरने के बाद ज़मीन में जाना है, तो ज़मीन पर कभी अकड़ कर चलना। और अल्लाह ताला और आगे वो बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इतराने वाले और शेखी मारने वाले को पसंद नहीं करता। बोलते वक्त अपनी आवाज़ नीची रखो, यानी आहिस्ता बोलो, और क्योंकि बहुत ऊंची आवाज़ जो है वो बेसुरी मालूम होती है, गधे जैसी आवाज़ मालूम होती है।
कौवे की काएँ काएँ जो बुरी आवाज़ें लगती हैं उनकी तरह मालूम होती है। तो हमेशा अपनी आवाज़ धीमी और आहिस्ता रखो और ठहर कर आराम से बोलो। और कुछ शक नहीं कि सबसे बुरी आवाज़ जो है वो गधे की होती है। तो हकीम लुक़मान अपने बेटे को अच्छी नसीहतें कर रहे हैं, और यही नसीहत हर इंसान के लिए हैं कि वो अल्लाह ताला के कामों पे कभी शिर्क ना करे और हमेशा एक अच्छा इंसान बन के रहे। और जैसा हमारे प्यारे नबी के बारे